ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਟੂ ਬਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਿਆ। ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਪਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੇ ਤਜੋ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੇਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਲ ਤੀਸਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਸਿਆਈ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਪੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਧਰਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ, ਗੁਫਤਾਰ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਦਸਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਗੁਫਤਾਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਰਫਤਾਰ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ।
लेकिन सतगुरु कहते ये गुलामी की निशानी है, सुतंत्रता नहीं। नंबर 2 के उत्ते अभाख्या का पुट्ठा बकरा खाना, घर घर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी, ये निशानियां ने गुलामी दियां। अपनी मात भाषा नूं त्याग देना, पहरावा त्याग देना ते नाल अपनी खुराक त्याग देना। ये सतगुरु कहंदे इहदे नाल जदों धर्म कर्म करदा है, पूजा पाठ करदा है, ते पूजा पाठ करन वेले सोचदा है कि मैं अपनी जिंदगी दे विच जो बंदगी कीती है, जो मैं पूजा पाठ कीता है, वो मैं बहुत बड़ा काम किया है और है भी बहुत बड़ा कार्य, जिहदे वास्ते सानू जिंदगी प्राप्त हुई। लेकिन सतगुरु कहते ध्यान मार के वेख, तेरा पूजा पाठ किथे खड़ा, गुलामी विच नहीं। अंतर पूजा पढ़े किताबां संजम तुरका भाई, छोटी दे पखंडा नाम ले जाहे तरंदा। सतगुरु कहते जदों तू अपनी जिंदगी जी रहा है, उस जिंदगी जीण दे विच तैनूं जीवित रहण वास्ते टैक्स पे करना पै रहा, जिन्हों जजिया टैक्स कहते कि मनुख ने 5 भूतक शरीर लैके घूमना, इस धरती के उत्ते जीवना है, ऑक्सीजन खाण का, हवा खाण का भी टैक्स पे। जिस गौ माता की पूजा करता है, जिहदे गोबर नाल सुच्चा चौंका पा के सब कुछ कर्म धर्म करता है, सतगुरु कहते उहदे वल ध्यान मार के वे। गो ब्राह्मण कौ कर लाभो, गोबर तर न जाई, धोती टिक्का तै जप माली, धान मलेशा खाई। अंतर पूजा पढ़े किताबां संजम तुरका भाई। ते सतगुरु पातशाह जी ने कुछ स्लोगन बख्शिश कीते साडे जीवन नूं टुंबण वास्ते, सानू हिम्मत देण वास्ते। सतगुरु कहते पूजा करनी चाहिए और हर मनुख नूं हमेशा सदा वास्ते 24 घंटे रब दा पुजारी बन के जिंदगी बतीत करने की लोड़ है। ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी। लेकिन पूजा की इज्जत का जीवन प्राप्त नहीं होया। सतगुरु कहते पत बिन पूजा, सत बिन संजम, जत बिन काहे जनेऊ। नहावो धोवो तिलक चढ़ावो, सच बिन सोच ना होई। किहदी पूजा है? जिहदे नाल तेरी इज्जत का कुछ बन नहीं सकिया, तेरी शानो शौकत बरकरार नहीं होई, तेरे अंदर गुलामी पै गई, ये किदां दी पूजा करदा? पत बिन पूजा, सत बिन संजम, जत बिन काहे जनेऊ। नहावो धोवो तिलक चढ़ावो, सच बिन सोच ना होए। ते सतगुरु पातशाह जी ने, गुरु नानक साहब जी ने अपने जीवन काल विच ए जिथे राजे महाराजियां जुल्मां दे विरुद्ध आवाज़ बुलंद की, उत्थे नाल सतगुरु पातशाह जी ने एक होका दिता पूरे समाज नूं, पूरी मनुखता नूं, जिहड़ा गुलाम हो चुका। जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किश खाए। सो जीविया जिस मन बसिया सोए, नानक अवर ना जीवै कोए। कि जिंदगी विच जे तू गुलाम होके जिंदगी बतीत कर रहा ना, तेरा पहनना, तेरा खाना, तेरा बोलना, तेरा बैठना सब कुछ व्यर्थ। और इस जीवन दे विच जे तू कुछ करना चाहना है, क्योंकि अज तेरे को अपनी जिंदगी विच कुछ भी पले नहीं, और जिहड़े लोग अपने आप को समझते हैं कि असीं बहादुर हाँ, उन्हां लोगों की हालात भी सतगुरु ने बयान की है। और समाज धार्मिक पक्ष तो, राजनीतिक पक्ष तो, समाजिक पक्ष तो किथे खड़ा लिया के सतगुरु कहते मैं इको फिगर बंद करना चाहना। अंधी रही ज्ञान भी होनी, भाहे भरे मुर्दार, मुर्दे हो चुके हैं। उन्होंने अंदर जुड़त भरने वास्ते सतगुरु कहते एक हिम्मत चाहिए। धर्म बहुत सारे लोग लालच करके धारण करते हैं, अपनी पेट पूर्ति वास्ते करते हैं। लेकिन सतगुरु नानक पातशाह जी ने स्लोगन दिता, नारा बुलंद किया, जब तू धर्म की दुनिया च पैर रखना ना,
कि धर्म की दुनिया में पैर रखदे कदम रखदे गल सोच के आई, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, एक मार्ग पैर धरीजा सिर दीजा कान ना खींचा। क्योंकि असी बहुत सारे सोचते हैं शायद छेवें पातशाह जी के समय, दसम पातशाह जी के समय सिर देने की गल की, यदि आरंभता सतगुरु नानक पातशाह जी कर रहे हैं। और जदों असी सारे गुरु ਸਾਹਿਬਾਨ का जीवन पढ़ते हैं, उन्होंने ख्याल पढ़ते हैं, उपदेश पढ़ते हैं, सारे एक सुरता में इन्हां ते पहरा देने वाले ने। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, एक मार्ग पैर धरीजा सिर दीजा कान ना कीजा। आपो किन्ने बहादुर ने। जो भाई गुरदास साहब जी की उन्होंने आगमन की गल की है, जिथे बाकी गल्लां कीतियां ने, उत्थे एक बहुत महान फिक्रा है, पंक्ति है, सिंह बुके मिरगाबली भन्नी जाए ना तीरथ रोआ। फिर दूजी बख्शिश की, बुकिया सिंह उजाड़ विच सब मिरगाबल भन्नी जाए। और आप जी ने अपने जीवन काल दे विच बाणी का संग्रह भी किया। उस बाणी संग्रह के भगत कबीर साहब जी की रचना, भगत रविदास जी की रचना, भगत रामानंद जी की रचना, ये जो बनारस तो कलैक्ट की गई ना, ये भगत कबीर साहब जी के पावन बचन उस बाणी के राही अपनी पोथी साहब में संभाले। अपनी पोथी साहब में संभालने तो बाद अगे गुरु अंगद साहब जी को पहुंचे। गुरु अंगद साहब तो बाद जो संपादन होया वो दर्ज होया, अज भी वो बचन सुभायमान है। गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जुजन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कब हो न छाटे खेत। कि सूरमे का सुभाव जिहड़ा है वो भगौड़ा नहीं। और इसे करके सतगुरु पातशाह जी का जीवन जो पढ़ते हैं, आरंभता का जीवन, गुरु नानक साहब जी का जीवन, मैं गुरु नानक साहब जी को इस करके साझा कर रहा हाँ क्योंकि कभी भी कोई बिल्डिंग तैयार करनी हो, महल तैयार करना हो, कलस पहला कभी नहीं बन सकता। ਉਹਦਾ ਬਨੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਟੌਪ कभी पहला साजिया नहीं जा सकता। कोई है ठेकेदार, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला, ਜਿਹੜਾ बनेरा पहला बना दे, कलस पहला बना दे, टॉप पहला बना दे। नींहां पहला रखिया जांदियां, नींहां जिन्नियां मजबूत ने, फाउंडेशन जिन्नी मजबूत है, उत्ते महल की उसारी होनी है। अगे जाके फाइनल टच देने वाले ने। लेकिन नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीम दा। ते सतगुरु पातशाह जी ने कृपालता की है कि आपने अपने जीवन काल दे विच ये नहीं रखी। एक तो फास्ता बढ़ दिता, जाता पाता का बखेड़ा, जिन्हां लोगों को धर्म की दुनिया में रब का सिमरन करने की इजाजत नहीं, रब की गल सुनने की इजाजत नहीं। अज वो ताकत सुभायमान 15 भगत और गुरु नानक पातशाह का यह पावन बचन सदा वास्ते अगवाई करेगा। जिथे नीच संभालिया तिथे नजर तेरी बख्शिश। और सूरमा वो सूरमा है असल में जो लोगों से धक्का करे, वो सूरमा नहीं। सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के हेत, जिहड़ा गरीबां की खातर लड़ता है। और इसे करके सियाने लोगों ने जो गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन किए, वो कहते जो कबीर साहब जी का बचन पढ़ते हैं, ये तो पहला बचन विशेष तौर पर दर्ज किया गया, राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो भाव बेदर को देखियो, वो गरीब मोहे भावे। हासी देख भरम ते भूला श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग में पाया गुण गावत रहन बिहानी, कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी जात न कहूं की मानी। समाज में चल रही एक उदाहरण पेश की सतगुरु पातशाह जी ने कि जिमें दुनिया मानती, हिंदुस्तान के लोग मानते हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੀਚ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਗਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਆ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़ा खेत। सतगुरु पातशाह जी ने उस वेले ये बाणी का संग्रह संभालिया अपने जीवन काल दे विच पोथी साहब का रूप दिता। एक चैलेंज सी समय की हुकूमत वालों कि किसी कौम का अपना कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। कल परवेन प्रवान कतेब कुरान पोथी पंडित रहे पुराण के पुराणों के उत्ते बाकी पोथियां के उत्ते पाबंदी ला दी। गुरु नानक पातशाह कहते मैं तेरा चैलेंज कबूल करदा मैं प्रकाश करना मैं पोथी साहब की साजना कर रहा। जो असी अज 10 पातशाह की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करते हैं जो असी रोज अरदास वेले 10 पातशाह नूं चेते करन तो बाद फिर अनुभव करते हैं अपने आप नूं समझाउण वास्ते गुरबाणी नूं चेते करन वास्ते दी महत्ता नूं समझण वास्ते असी वचन करते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। एक चैलेंज सी उस वेले गुलाम लोगों के सामने कि उन्हां दी कोई अपनी पोथी प्रकाश नहीं हो सकती अपना कोई सिद्धांत प्रकाशमान नहीं हो सकता अपने सिद्धांत की गल नहीं कर सकते हो। कल प्रवान कतेब कुरान पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाम भै रहमान केवल रब का नाम विशेष तौर पर पहले कहते सन रब का नाम सारे नहीं लै सकते ते दूसरे कहते रब का नाम सारे लैणगे लेकिन साडा फिट किया लैणगे जो असी रब का नामकरण किया ना वो लैणगे। एक बार कहता भी रब का नाम सारे वास्ते नहीं ये साडा हक है। वो कहते तुसी लाओगे जपोगे लेकिन नाम खुदाई अल्लाह पे नानक नाम भै रहमान इस तो सिवा किसी दूजे ने कोई दूजी गल की कि वह जीवित नहीं रह सकता। सतगुरु नानक पातशाह जी ने कृपालता की इसका संचार करने वास्ते अगे ज्योति जो समान तो पहला इस सिद्धांत को गुरु अंगद पातशाह जी के हवाले किया। जोत ओहा जुगत साए शकाया फिर पलटी है और गुरु अंगद पातशाह जी ने अपने जीवन काल दे विच जिथे बाकी कार्य किए ने उतों सब तो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जिहड़ा कि दुनिया के अंदर पहली संस्था कायम की जिथे दुनियावी विद्या पढ़ने का प्रबंध किया गुरु साहब जी ने। क्योंकि जे अज्ञानता नूं मिटाउणा है तो सानू ज्ञान की लोड़ है। ज्ञान की लोड़ नूं पूर्ण करने वास्ते साडे कोल अपना माहौल चाहिए अपने स्कूल चाहिए ते गुरु अंगद पातशाह जी अपना स्कूल ऐसा स्थापित करते हैं जिहदे विच 3 गल्लां दा सुमेल है और दुनिया का पहला स्कूल उस वेले खडूर साहब के अंदर दुनियावी विद्या का प्रबंध धार्मिक विद्या का प्रबंध नंबर 3 के उत्ते स्टेडियम का प्रबंध। अज भी सानू जरूरत है हर गुरुद्वारे के अंदर जे असी अजीत सिंह जुझार सिंह जोरावर सिंह ते फतेह सिंह पैदा करने हैं ना माता गुजर कौर पैदा करनी है तो साडे कोल अपना माहौल होना चाहिए। इस गल नूं बहुत चंगी तरह भली बात समझने की जरूरत है कि पहली उदासी तो बाद जिहड़ा पहला कार्य किया गुरु साहब जी ने आके ना वो करतारपुर साहब की स्थापना। अज असी खेरू खेरू होकर साडे बच्चे जिन्हां स्कूलों च पढ़ते हैं इन्हां दे जूड़े नूं छेड़ के जदों दूजा भजदा है दस्तार नूं टच करके भजदा है निरादरी करने का यतन करता है बच्चा उदास होता है डिप्रैस होता है। वो दूजे दिन आके मां नूं कहंदा शाम नूं मैं कल नूं स्कूल नहीं जावांगा जां दस्तार उतार के जावांगा। सतगुरु अंगद पातशाह जी ने बहुत बड़ी अगवाई दी। गुरु नानक साहब जी ने करतारपुर साहब नूं स्थापित करके सिख प्रभावी नगर जिथों अजीत सिंह जुझार सिंह जोरावर सिंह ते फतेह सिंह पैदा होने जिथों माता गुजर कौर पैदा होनी जिथों माता साहिब कौर ते माता सुंदर कौर पैदा होनी
कदी इन्हां वल ध्यान दिता सिख कौम ने? कदी ख्याल किया इहदे वाले पासे? और गुरु अंगद पातशाह जी प्रैक्टिकल शेप दे रहे हैं कि दुनियावी विद्या पढ़ने वास्ते क्लासां ले रहे, पंजाबी प्राइमर तैयार कर रहे, गुरमुखी की सुधाई कर रहे, और नाल दुनियावी विद्या के नाल धार्मिक विद्या। आज देखो विद्या तो बहुत प्राप्त की, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अफीसर बन गए, IPS बन गए, PCS बन गए, इंसान किन्ने बने? एक सियाने बंदे ने गल आखी सी, कहंदा जदों एजुकेशन की गल करिए ना, जे एजुकेशन साडा धर्म तो विहूणा है, ਉਹਦੀ हालत इस तरह की जिवें साडे सामने डैड बॉडी पई होवे ते डैड बॉडी नूं देख के सियाना बंदा आखे, कोई बंदा मजाक करे, इहदियां अखां भी ठीक ने, इहदे कन्न भी ठीक ने, इहदियां लत्तां भी ठीक ने, पैर ते हत्थ भी ठीक ने, पर इहदे विच प्राण नहीं। प्राणा तो विहूणा बंदा की है? मुर्दा है ना। ते जे साडे कोल एजुकेशन बहुत होवे, बंदा PhD कीती होवे, मैडिकल साइंस पढ़ी होवे, ते लोकां दी छिल लांदा होवे। देखो ना भरूण हत्या की गल, जिन्हें कल नूं अजीत सिंह बनना होवे, माता गुजर कौर बनना होवे, ओहदा पहले ही निबेड़ा करता जाए। कौन करता? अनपढ़ बंदा करता। इस करके गुरु अंगद पातशाह जी ने इहदे वल ध्यान दिता, और इस पासे ध्यान देने दे नाल इहनूं उजागर किया, मन अखाड़ा कायम किया। फिर जो गुरु नानक पातशाह जी ने जुरत भरी सी ना, बाबर का सामना करके हिंदुस्तान चुप करके बैठा है, लेकिन सतगुरु नानक पातशाह जी राजेशी मुकदम कुत्ते कहते, पाप की जंज लकावलों ताया जोरी मंगे दान वे लालो। अज दूसरे जामे के अंदर जो भगौड़ा होके भज के आ गया, तलवार कट के खड़ गया हमायूं, ते सतगुरु कहते तेन शर्म चाहिए, लानत भरिया जीवन। जेड़ा सूरमा है, सूरमे की जी दशा है, वह पुरजा पुरजा कट मेरा काबू ना छाड़ा, खेत का भगौड़ा हो गया। सूरमे तेरे वर्गे होंगे जो गरीबों के उत्ते, नताणिया के उत्ते, फकीरों के उत्ते, दरवेशों के उत्ते तलवारां करन। ये सतगुरु पातशाह जी क्यों कर रहे? ताकि आने वाला समा जिहड़ा है वो एक जुरत भरिया समा होवे, आज़ादी भरिया समा होवे। और जदों तक साडे अंदर हुक्म मनण दी क्रिया नहीं, उदों तक असीं आज़ाद नहीं हो सकते। अज असीं ये भी सोचते हैं कि आज़ादी का भाव आप मुद्रापन, पर नहीं। जो सियाने कहते ने उहदा भाव है अपनी जिंदगी में हुक्म मन्निया होवे प्रवान तां खसमा का महल पाए सी। गुरु अंगद साहब जी ने एको गल समझी अपने जीवन में, नानक बनने वास्ते, गुरु नानक साहब का रूप बनने वास्ते, जोत हा जोत साहिब बनने वास्ते, कि हुक्म मन्निया होवे प्रवान तां खसमा का महल पाए सी। भाई गुरदास साहब जी ने कुछ बचन साझे किए, क्योंकि बुजुर्ग लोग, सियाने लोग कहते हैं शर्त आज़ादी क्या है? आज़ादी की कुछ पाबंदियां, जो इनका पाबंद है वो असल में आज़ाद है। वो कहते तुसी बाज वेखो ना, जिन्ना चिर बाहर घूमता है वो जीव हत्या करता है, वातावरण बिगाड़ता, पर ज्यों ही तुसी चुक के बाज नूं पिंजरे च बंद करते हो, वो नुकसान होना बंद हो जाएगा। इस करके सानू खुलेपन में सुख नहीं, आनंद नहीं, बल्कि गुरु के हुक्म में, गुरु के हुक्म रूपी दायरे में आके, पिंजरे में आके सुख की प्राप्ति होनी, आनंद की प्राप्ति होनी है। भाई गुरदास साहब जी ने पहला वचन किया, कहते खुले से बंधन विखे भलो है सी जाने, जीव घात करे ना बेकार होए आवे। नंबर 2 के उत्ते तोते की उदाहरण दी, कहते तोता जिन्ना चिर बाहर घूमता, कदों कोई झपट मार दे बिल्ली आके, कुत्ता आके जीवन लीला समाप्त करके रख दे, बड़ा खतरा उसदे वास्ते। लेकिन ज्यों ही चौके तोते नूं पिंजरे च बंद कर दो, जे मुसलमान के घर में ओहदी बोली सीख लैंदा, सिख के घर में ओहदी बोली सीख लैंदा, हिंदू के घर में ओहदी बोली सीख लैंदा, कोई पिंजरे च बंद कर लवे, ओहदा जीवन भी सुरक्षित हो गया ते नाल ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई।
खुले से बंधन विखे भलो है सुआ प्रसिद्ध, सुन उपदेश राम नाम ले बुलावे। जे बाबा अजीत सिंह जी की गल करते हो ना, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जुझार सिंह की गल करते हैं, वो हुक्म मनण तो पैदा होए। साहिबजादे तो बाबा श्री चंद भी है, साहिबजादे तो बाबा लक्ष्मी दास भी है, साहिबजादे तो बाबा दासू ते बाबा दातू भी है, साहिबजादे तो बाबा मोहरी जी ते बाबा मोहन जी भी है। लेकिन अगे जाके साहिबजादियां विचों धन गुरु अर्जन पातशाह जी नूं पदवी प्राप्त हुई है। पहली जे किसी नूं सत्कार प्राप्त होया साहिबजादियां दे रूप विच, वो धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने गुरु रामदास जी के 3 साहिबजादियां दे विच। मन है हुक्म सोहे दर साचे, आकी मरे अफारी। ਜਿਹੜੇ ਆਕੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਫਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਸੇ ਬੰਧਨ ਵਿਖੇ ਭਲੋ ਹੈ ਸੂਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਸੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ। ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। कबीर साहब जी की बाणी पढ़िए तो कबीर साहब भी ये मिलती जुलती गल करते हैं। कहते तू पिंजर हो सूअटा तोर, जम मजार कहाँ करे मोर। मैं छोटा जहा तोता हाँ तेरा सूअटा, जिदन तो तेरे हुक्म रूपी पिंजरे च बंद होया ना, हुण जम रूपी बिल्ला मेरा कख नहीं बिगाड़ सकता। जम कदी वजीर खां बन के बैठा, कदी औरंगजेब बन के बैठा, कदी बाबर बन के बैठा, कदी जहांगीर बन के बैठा है, कदी शाहजहां बन के बैठा है, कुछ बिगाड़ सके? जिन्होंने लोगों ने अपने आप को हुक्म च बंद कर लिया। पहली उदाहरण दी, भलो खुले से बंधन विखे भलो है सी चाने, जीव घात करे ना बेकार होए आवे। खुले से बंधन विखे भलो है सुआ प्रसिद्ध, सुन उपदेश राम नाम ले बुलावे। तीजी एग्जाम्पल कहते खुले से बंधन विखे चक्की भलो है। चकवी ते चकवा, इन्हां बारे कहानी प्रचलित है, खास करके हिंदू मत के वीरां विच भैणां विच, कि जदों रामचंद्र जी बनवास में सन, सीता जी नूं चुक के लै गया रावण, जो कहानी उन्होंने रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। विछोड़े का एहसास करदे कुरलांदे फिरदे ने ते थां थां पुछदे ने, कदी किसे नूं कदी किसे नूं, जिवें बंदा डिप्रैस हो के करदा। जदों कहंदे इहदे कोल जाके पुछिया ना भी मेरी सीता नूं वेखिया, उन्हें मखौल उड़ाया। वो कहने लगे तेन लोग भगवान कहते, अवतार कहते, तू मैनू पूछ लै। कहते रामचंद्र जी ने श्राप दे दिता उन्होंने मिथ के मुताबिक भी जिवें अज मैं कर ला रहा ना विछोड़े करके, तू सारी जिंदगी तू नहीं कर लाएगा। लेकिन भाई गुरदास जी पता की कहते, कहते जिन्ना चਿਰ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵਾ बाहर ने श्राप उन्नी देर। ज्यों चुके चकवी ते चकवे नूं पिंजरे च बंद कर दिओ ना, रामचंद्र जी का दिता श्राप ही सारा समाप्त। श्राप तो मुक्ति। सानू जिन्ने श्राप नशियां दे, कर्म कांडां दे, ये चिंबड़दे क्यों क्यों असीं घिरे पे उहदे च, जदों तक असीं हुक्म तो बाहर, आग्या तो बाहर, मन मर्जी विच जीवन बतीत करते हैं। इस करके भाई गुरदास साहब जी सानू नसीहत कर रहे हैं कि जे तुसीं अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह ते फतेह सिंह बनना ना, अपनी आदत उन्हां वर्गी बनानी है, आग्याकारी बनना है। फिर खुले से बंधन विखे चक्की भलो है, सुन राम रेख मेट निस्परे संग पावे। राम रेख मेट का भाव रामचंद्र जी का दिता शराब भी मेट के ना, वो अपने उस प्यारे दे नाल सदा वास्ते मिल जाती है। फिर देखो लोकी मुक्ति वास्ते कोई किते भटकदा फिरदा, कोई किते भटकदा फिरदा है। लेकिन भाई गुरदास साहब कहते मुक्ति सानू इदां दी नहीं चाहिए जो लोगों की भटकना में फसी पई है। और जिन्ना चिर बंदा उत्थे फसिया पिया ना, जब लग मन वैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरने वास। सुरग नरक ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद। इस करके अपनी जिंदगी में भाई गुरदास साहब कहते इन्नी आज़ादी प्राप्त हो जाती है
देखो ना स्वर्ग ते नरक की जो गल करिए ना, ए क्लास जेल होंगी, बी क्लास होंगी, सी क्लास होंगी है, ये थोड़ी कंफर्टेबल होंगी, अटेंडेंट मिलिया होंगे, टीवी देखने मिल सकता, अखबार पढ़ने मिल सकती, है तो जेल ही है ना। बी क्लास भी जेल, सी क्लास भी जेल, तो जो बाहर निकलते दरवाजा एक ही होंगे। सतगुरु कहते भी स्वर्ग भी जेल है, नरक भी जेल है, दोहां ने जो निकलना जमन मरना फिर बनया पिया, भटकना फिर बनी पई है। इस करके अपनी जिंदगी में मुक्त से तैसे मानस जन्म भलो। असीं तो रोज अरदास करते, चंगा बंदा गया ना सच्चे पातशाह नूं अपने चरणों च निवास बख्श मुड़ के ना आउंदे। किसी साधु नूं किसी ने लांभा दिता सी ना भी धरती दे उत्ते सारे चोर ही रह गए, वो कहंदे तेरियां अरदासां करके ही है सारा काम, तुसीं रोज तक कही जांदे हो। और जे किते साडे वर्गा गल करे भी सच्चे पातशाह नूं वापस भेज, देखो ओदी की गल बननी। चंगे बंदियां नूं मंग करिया करो मुड़ के भेज। मुकत से तैसे मानस जन्म भलो, साध संग होए राम नाम प्रभ ध्यावे। गुरु की संगत में आके इस मनुखा जिंदगी राही असीं चंगे इंसान बन के सरबत दे भले वास्ते कारज करना, भगौड़े हो के नहीं। ते सतगुरु पातशाह जी ने दूसरे जामे विच, तीसरे जामे विच, चौथे जामे विच, फिर पंजवें जामे विच अपनी शहादत दे के कारज करके गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके गुरमत की निरोलता नूं बरकरार रख रहा और साडे अंदर जुर्त भरी अपनी शहादत दे के। हिंदुस्तान के अंदर रिवाज सी कि किसी बकरी नूं फड़ो, छेले नूं फड़ो, कोई गां फड़ के भेंट कर दिओ, बंदा फड़ के ओदी बलि दे दिओ, अपनी बलि नहीं, फिर बाद च नारियल भंनदे हो। और सानू इन्नी अलामत चिमड़ी पई है भी असीं गुरुद्वारियां दे विच भी ऐसे कर्म करते फिरदे हैं। मैं बंबे गया कल्याण, उत्थे निशान साहब का चोला चढ़ाया तो मैनूं बाद च कहण लगे कमेटी वाले भी तुसीं ना जी आ नारियल तोड़ के हुण समाप्ति करो। मैं बड़ा हैरान, मैं बेनती की साडा तो अरदास तो कारज आरंभ होंदा, बाद च भी अरदास धन्नवाद वास्ते। वो बड़े सियाने सन, सूझवान, कहण लगे आ माइक फड़ के फिर अनाउंसमेंट करो, अज तो बाद नहीं काम होएगा। साडे अंदर जुर्त भी चाहिदी है ते कहण दे चंगे शब्द भी चाहिए, क्योंकि नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए। चंगे शब्दों में आपां बेनतियां करनियां, कर्मकांडा तो मुक्ति लैनी है। सतगुरु पातशाह जी ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी है। पहली शहादत सी दुनिया की धरती के उत्ते, हिंदुस्तान की धरती के उत्ते कि सतगुरु नानक पातशाह जी की उस पंजवीं जोत नूं, पंजवें स्वरूप नूं उबलते पानी में उबालिया गया, तती तवी ते तत्ता रेत सी पा के साड़ साड़ के शहीद किया गया। लोग समझते हैं भी असीं शहादत देने तो बाद जहांगीर जिहड़ा झूठ की दुकान कहता सी ना भी हुण सिੱਖੀ नूं असीं समाप्त कर दिता, सिੱਖੀ नूं खत्म कर दिता। लेकिन उहदे विचों पंज प्याले, पंज पीर, छाटन पीर बैठा गुर भारी, अर्जन कायम पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोटियां रूप दिखावन बारो बारी। सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने स्वरूप धारण किया, अकाल तख्त साहब की सिरजना, होर सिरजनावां कीतियां, पंज युद्ध लड़े, चार प्रमुख ने, पंजवां फराई साहब का, और चौहां में जित्तां प्राप्त कीतियां। और चौहां में जित्तां प्राप्त करने तो बाद सतगुरु पातशाह जी ने मीरी ते पीरी का संकल्प जिहड़ा सी, ये गुरु नानक पातशाह जी ने दर्ज किया सी। संकल्प मूल मंत्र के अंदर निरभौ ते निर्वैर कह के, मीरी ते पीरी का भाव जिहदे विच निर्वैरता भी होवे, निरभैता भी होवे। ये संकल्प निरभौ ते निर्वैर दा हुण संकल्प मीरी ते पीरी के रूप दे विच, संत ते सिपाही के रूप में लोग समझते पे किवें कंबाइंड हो सकते, किवें इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन सतगुरु पातशाह जी ने सानू जो कुदरत के अंदर निजाम दिता ना, तुसी गुलाब का फुल वेखो, उहनूं कंडे भी ने ते नाल ओहदी सुगंधी, ओहदी कोमलता, ओहदा रहस, ओहदी रंगत साडे सामने सुहपण लैके बैठी। दोनों गल्लां कंबाइंड ने ना। भाई वीर सिंह कहंदे फुल गुलाब तो किसे पुछया अवे कोमलता दे साईं, तेरी इस सोहल सोहल सुहपण नूं है कि कंडियां बज लाई,
मस्त अलमस्ती सुर विच सोने हस कहा पता नहीं है मैनू तोड़ नाही दी फट्टी भावें मेरे मौला ने लाई। जना खड़ा तेरी पग नूं हथ ना पावे कंडे ला दिते। इवें ही आकाश तो मींह भरिया, धरती हरी भरी हो गई, मौसम साफ हो गया, मनुखता के अंदर बड़ा सुख शांत हो गया। जल बिन शाक को मिलावटी उपजा नहीं दाम की डर पै खत्म हो गया। लेकिन जदों बदल आपस में टकराए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बड़ी जबरदस्त बिजली पैदा हुई, जिथे डिग पैंदी सत्यानाश करके रख दिंदी। इवें ही सतगुरु कहते भगती ते शक्ति देख ते तेग ये इको जीवन के अंदर जो गुरु नानक पातशाह ने संकल्प दिता सी ना, चारे पैर धर्म के चार वर्ण एक वर्ण कराया। इको मनुख के अंदर खतरी वैश्य शूदर ते नाल ब्राह्मण इको मनुख होएगा, जिन्हों असीं सिख कहते हैं, खालसा कहते हैं। ये सतगुरु पातशाह जी ने एक कृपालता ये बख्शिश की। ये दूजे साहिबजादे ने गुरु अर्जन पातशाह जी ने, जिन्हों ने आग्ञा का पालन करके अपने पिता नूं धर्म की खातर कुर्बान होने वास्ते तोरिया छोटी उम्र दे विच, और यह रुतबा प्राप्त किया। पंज प्याले पंज पीर छाटम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी, चली पीरी सोडियां रूप दिखावन बारो बारी। बाबा गुरदित्ता जी के पुत्र अगे गुरु हराय साहब जी आग्ञा का पालन गुरबाणी की निरोलता बना के रखना। चाहे पुत्र भी मिलगोबा करने का यतन करे ना, उन्होंने बर्दाश्त नहीं करना। जिन पे अदब बाणी धारा सो जानो नहीं सिख नहीं हमारा। अठवें पातशाह जी फिर साहिबजादे के रूप दे विच गुरु हरकृष्ण साहब जी ने यह रुतबा प्राप्त किया आग्याकारी होने करके। इधर धीरमल ते दूसरे पासे राम राय दोनों पासे हो गए, क्योंकि गुरुडम में विश्वास करने लग पे, अपनी पूजा प्रतिष्ठा में अपनी वडियाई में विश्वास करने लग पे। छेवें पातशाह जी के साहिबजादे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी जिंदगी का कितना त्याग किया। तुसीं पहले पातशाह तो लेके पंजवें पातशाह तक देखो किवें लोग यतन कर रहे पे गुरता गद्दी नूं प्राप्त करना। यह गद्दी साडे कंट्रोल में चाहिए। गुरु अमरदास पातशाह जी ने नरादरी करने का यतन किया, दातू जी ने, बाबे पिरती ने सारी जिंदगी जोर लाया। छेवें पातशाह के समय कोई नहीं कुसकिया जदों खून बहाण की गल आपा वारन की गल। सतवें पातशाह तो लैके नौवें पातशाह तक फिर देखो तुसीं किवें लाइनां लगियां, बाई मंजियां ला के बैठे ने। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दो पातशाहियां दे सामने एज ए साहिबजादा जीवन जीविया और आग्याकारी होकर जीविया। गुरु तेग बहादुर साहब जी वो शख्सियत ने जिन्होंने जो गुरु नानक पातशाह के वचन पढ़े ना, जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ, एक मार्ग पैर तरीजा सिर दीजा कान ना कीजा। सतगुरु कहते जो मैं इस खेल में वेखदा ध्यान दे नाल ना, कि अज मैं आखांगा जन नानक के खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। ये खेल कोई सौखी नहीं, लेकिन गुरु नानक मैं चांदनी चौक खेलनी है तो जित प्राप्त करनी है, और हर कदम के उत्ते जित प्राप्त की। दुनिया के वख-वख धर्म ने अपने अपने धर्म वास्ते सारे मरते हैं, लेकिन मनुखता लई धार्मिक जिन्हां दी आज़ादी लई, मनुखी अधिकारां दी राखी लई, धर्म की स्वतंत्रता लई, सच की आज़ादी वास्ते जे कोई अपने आप को कुर्बान किया है, वह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। और धन गुरु तेग बहादुर साहब जी तो बाद फिर साहिबजादे गोबिंद राय जी, गुरु पातशाह जी ने धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने साहिबजादे ने ना, और बहुत छोटी उम्र दे विच अपने हथी अपने पिता नूं कुर्बान करने वास्ते तोरना। लोगों ने पूछे होना, आख्या होना, गोबिंद राय जी तुहानूं पता भी तुहाडे माता के सिर तो भी साया उठ जाना पति का, तुहाडे सिर तो पिता का साया उठ जाना पति का। ते तुहानूं पता इस गल दा? वो कहने मैंने बिल्कुल पता। जब होते मात के गर्भ में करे रखवाली जो है,
अब तो भय कई साल के कि उन्हें सहाय हो। हुण तां असीं 9 साल दे आ, कईयां ने 14 साल भी लिखे ने भट पईयां दे मुताबक। हुण तां असीं काफ़ी उम्र दे हो चुके हैं ते हुण साडी सहायता क्यों नहीं करेगा जिहड़ा मां दे गर्भ विच साडी पालना करदा। मात गर्भ है आपन सिमरन देते हैं तुम राखण हारे। दुनिया का कोई ऐसा शख्सियत हो सकती है गुरु तेग बहादुर साहब जी वर्गी जिहड़ा अपने पुत्र की आग्या पा के पुत्र का हुक्म मन के अपनी शहादत देने वास्ते तुर पवे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जिन्हां दी शख्सियत प्यारा सिंह पदम जी कहते 3 गल्लां करके बंदा महान हुंदा। नंबर 1 दे उत्ते ओदी अपनी कोई करनी बहुत वड्डी होवे ते तां महानता गिनी जाती है। ये बहुत महापुरख है, बड़ा करनी वाला। नंबर 3 दे 2 दे उत्ते कहंदा ओदे पिता पितामा जिहड़े करनी वाले होणे। नंबर 3 दे उत्ते ओदी संतान करनी वाली होवे। कोई एक कारण होवे दे विचों आप ओदी करनी उच्ची होवे और उस तो बाद ओदे पिता पितामा दी कोई करनी वड्डी होवे और उस तो बाद ओदी संतान कोई मारका मारन वाली होवे, ओनू महान गिणदे आपां भी बहुत महान शख्सियत है। लेकिन कलगीधर पातशाह जी दे जदों पिता पितामा वल ध्यान मार के वेखदे हैं, गुरु अर्जन साहब जी तो गुरु रामदास जी तो लैके गुरु नानक साहब जी तो लैके कोई मुकाबला नहीं। गुरु अर्जन पातशाह जी ने जिन्हां ने निमरता विच रह के केवल रब दा आसरा लैके एका टेक मेरा मन की जिस किश करना सो हमरा मीत। गुरु रामदास पातशाह जी कीता करना सर्वरजाई किश कीचे जे कर सकिए, अपना कीता किशु ना होवे जो हर भावे त्यों रखी है। भाणा मनन दी ताकीद। 6वें पातशाह जी जुल्म नूं ठल पाउण वाले। 7वें पातशाह 8वें पातशाह फिर 9वें पातशाह का कोई मुकाबला है? दुनिया के अंदर कोई है ऐसा शहीद जिहदे नाम दे उत्ते 2 शीश गंढ होण? वो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी गुरु गोबिंद राय पातशाह जी के पिता जी गुरु हरगोबिंद साहब जी के छोटे साहिबजादे और उस तो बाद माता गुजर कौर जी जिन्हां ने अपनी हयाती विच अपने पति नूं कुर्बान होने वास्ते तोरिया हो और जिस धर्म नूं जिस सिद्धांत नूं ना मानते हो। एवलिन हिल होया इंग्लैंड दे विच, वो कहंदा उन्हें लोकतंत्र की परिभाषा दी तकरीबन 19वीं सदी में दी उन्हें। वो कहना मैं तेरे विचारों नाल सहमत नहीं लेकिन मैं तेरे विचारों की राखी वास्ते अपनी जान तक कुर्बान कर देंगा। लेकिन ये लोकतंत्र की परिभाषा गुरु नानक पातशाह जी की जोत ने 1675 में दी है। जिस जनेऊ की रस्म नाल गुरु नानक पातशाह कहते मेरा कोई वास्ता नहीं, जिहड़ा पत्नी नूं अधिकार ना देवे, मां नूं अधिकार ना देवे, भैन नूं अधिकार ना देवे, शूदर नूं अधिकार ना देवे, वो सिद्धांत नहीं। और सर्व मनुखता वास्ते गुरु साहब ने वचन किए जो अज भी दर्ज ने, जो असी रोज पढ़ते हैं, नितनेम करते हैं। आसा की वार के रूप में दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट ए जनेऊ जी का है तो पांडे घत ना ए टुटे ना अमल लगे ना ए जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए। सतगुरु पातशाह जी ने यह अपनी आहूति दी है, वो पिछे किहदा योगदान है? माता गुजर कौर जी का। और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी शख्सियत घड़न में किहदा योगदान है? माता नानकी जी ते माता गुजर कौर जी। बड़े साहिबजादे छोटे साहिबजादे उन्हां दी इस शख्सियत नूं निखारन विच कि अज असीं जदों 10 पातशाहां तो बाद गुरु ग्रंथ साहब जी की गल करते हैं, चेते करते हैं, उस तो बाद 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया बन सकिया देग चलाई तेग बाही देख के अंडर किया 3 प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी।
ये माता गुजर कौर का योगदान है। इस करके जे कौम नूं चाहुंदे हो कि साडी कौम अजीत होवे, जुझारू होवे, साडी कौम जोरावर होवे, साडी कौम फतेहयाब होवे, ते ओहदे वास्ते सानू अज मां गुजर कौर तैयार करने की लोड़ है, जिहदी अज साडे समाज में बहुत बड़ी घाट है। इस करके अपनी जिंदगी में सतगुरु पातशाह जी ने वो मां गुजर कौर, माता सुंदर कौर, जिहड़े माता अजीत कौर सन ना, जदों साहिबजादा छोटा साहिबजादा 2 साल का सी, जदों चलाना कर गए ते पालना दादी ने की, ते ये जीवन जात जिहड़ी प्राप्त हुई है ना आ 5 प्यारिਆਂ तो बाद उन्होंने चेते करन दी रोज वो उन्होंने आग्याकारी होने करके हुई है, वो हुक्म मनण की क्रिया करके हुई है कि जदों सतगुरु पातशाह जी ने हुक्म किया, चाहे वो हुशियारपुर दे कोल बसी जाके एक ब्राह्मण की बेटी नूं घरवाली नूं बचाउण की गल सी, चाहे रंगड़ा नूं सोधण की गल सी, चाहे आनंदपुर साहब का किला छड्डण तो बाद जो चक्कियां पिंड दे विच हमला किया गया उत्थे जूझण की गल सी, अगे जाके चमकौर साहब जूझण की गल सी कि पुत्र नूं कहण की जरूरत नहीं पई, पुत्र अपने आप उठ के खड़ा हो गया। और तुसीं दुनिया के इतिहास पढ़ के देखो, दूसरा जरा उन्होंने भी कहने की जरूरत नहीं पई, जदों बाबा अजीत सिंह जी शहीद हो गए ना, तो बाबा अजीत सिंह तो बाद दूसरा पुत्र अपने आप कहना मैनू आके सच्चे पातशाह आज्ञा दिओ। हजरत इब्राहिम की गल पढ़ते हैं आप, कोतूर पर्वत तो हेठा आ गए कि पुत्र की कुर्बानी देनी पैनी है। पुत्र की कुर्बानी देने तो पहला कह लगे मेरी अखां के उत्ते पट्टी बन दे, पट्टी बन दी गई, लेकिन धार्मिक आगुआ ने निर्णय ले लिया कि पुत्र नूं क्यों कुर्बान करना, इसकी थां दे उत्ते किसी जानवर की कुर्बानी दे दे, कम सार लिया गया। लेकिन अज सतगुरु कलगीधर पातशाह ने अखां ते पट्टी नहीं बनी, अजीत सिंह जी नूं अपनी अखां दे सामने टुकड़े टुकड़े हुंदा वेखिया, जुझार सिंह नूं अपने अखां दे सामने टुकड़े टुकड़े हुंदा वेखिया। ये सतगुरु पातशाह जी ने जो करनी की है उन्होंने अल्लाह जारखा कहता है। मैं रामायण भी पढ़ी है, मैं महाभारत भी पढ़ी है, दोहां पढ़ने तो बाद मैं जब चमकौर नूं पढ़दा तो मैंने एक बहुत बड़ी विलक्षणता नजर आ रही है। अल्लाह जारखा कह रहे, मैं नहीं कह रहा, तुसी नहीं कह रहे। लक्ष्मण साहब बिरादर पाए तस्कीन जिगर था, सीता सी पति व्रत बन राम को घर था। लक्ष्मण साहब बिरादर, बिरादर कहते भरा ना, पाए तस्कीन जिगर था, सीता सी पति व्रत बन राम को घर था। बाकी है कन्हैया नहीं कोई पिसर था, सच है गुरु गोविंद का रुतबा ही दिगर था। कटवा दिए शेष शाम ने गीता सुनाकर रूह फूक दी, गुरु गोविंद ने औलाद कटवा कर। कलगीधर पातशाह जी ने अपने जिथे पिता जी का खून पाया ना, दादा जी का खून पाया, परदादा जी का खून पाया, उथे नाल अपने बच्चों की आहुति दे के इस धर्म में प्रफुल्लित की। और माता गुजर कौर जी का विछोड़ा सरसा नदी के उत्ते पै गया। ਜਿਹੜੇ महल सन वो इतिहासक तारां के मुताबिक 2 महीने तकरीबन पहला जा चुके हैं दिल्ली वाले साइड पासे, आगरे वाले पासे। और दोनों साहिबजादे छोटे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह, उन्होंने बारे भी आप जानते हैं किवें उन्हों की शहादत की गई, किवें नीहां चढ़ के शहीद किया गया। और जिहड़ा असीं अगे अरदास करते हैं ना, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म इसी दे उत्ते बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ के संसवासा संग निभाई। इन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी, ये साहिबजादियां दी देन है, जिन्हां ने अपनी छोटी उम्र दे विच अपनी आहुति दी, धर्म दे विच अडोलता विखाई। और अडोलता का सदका असीं जानते हैं कि अगे जिन्नियां शहीदियां ने उन्होंने बल उत्थों प्राप्त होया। बंदा सिंह बहादुर दे कोल इक्को ही नारा सी कि तुहानूं सरहंद चेते कर दी, तुहानूं चमकौर दा मैदान चेते कर रहा है।
और सरहद ते चमकौर के नाम उत्ते हज़ारां लोग अपनी शहादत देने वास्ते तैयार हो गए। एक प्रतीक ने साडे वास्ते अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह ते फतेह सिंह जी के कौम अजीत चाहिए है, जुझारू चाहिए है और जोरावर चाहिए ते फतेह पाण वाली चाहिए। और सानू ये गल ये शक्ति कितों प्राप्त होनी? धन गुरु ग्रंथ साहब जी तो बाणी पढ़ के। जिवें आपां कोई बिल्डिंग तैयार करते उहदे पिलर रखते ना मजबूती दे नाल, गुरु नानक साहब जी ने दो ही थंब रखे ने सिक्खी दे। जदों सिद्ध गुरु साहब नूं बेनती करते सच्चे पातशाह तुसी बहुत करामाती लगदे हो, किरपा करो। सिद्ध बोलन सुन नानका तोहे जग नूं करामात विखाई, कुछ विखाले असां नूं तोहे को ढिल अबेही लाई। बाबा आखे नाथ जी असां वेखे जोगी बस्त ना काई, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं हराई। केवल ते केवल गुरु की संगत ते गुरु की बाणी, इनू अपनी जिंदगी में अपने थंब समझो और अपना सहारा केवल गुरु की संगत नूं बना के रखो ते गुरु की बाणी नूं बना के रखो। और असी अज बड़ा इस तो अवेसले हो रहे हैं, गुरुद्वारे खाली पे होंगे ने सवेरे जो आसा की वार का कीर्तन होवे भी देखो जी सवेर तो लैके शाम तक असी कीर्तन कथा टीवी तो सुन रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे क्लासा ला रहे हैं, घर दे रोंदे हैं। रो किस करके रहे? पढ़ तो रोज रहे हो लेकिन डिसिपलिन नहीं रहा, अनुशासन नहीं रहा। बच्चा पै के पढ़ रहा, किवें पढ़ रहा, पिछे भज जाता, बंद करके पता नहीं किहड़ी किहड़ी गेम खेडी जाता है। टीवी तो कीर्तन तो सुनोगे, कथा तो सुनोगे, लेकिन डिसिपलिन नहीं। दस्तार सजाण दा डिसिपलिन होएगा? एक दूजे दे नाल होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो, लिवलाए दा डिसिपलिन तो मिलेगा? वो केवल क्लास वर्क में डिसिपलिन की प्राप्ति होनी। अनुशासन सानू क्लास में जाके प्राप्त होना। तो क्लास की है? सत संगत सतगुर टकसाल है, जित हर गुण सिखा। इस करके गुरु की संगत नाल जुड़ो और गुरु की संगत नाल जुड़ के जिन्होंने असीं चेते करते हैं उन्होंने वर्गे बनने का जतन करो तो बनाने का जतन करो। माता गुजर कौर जिन्हों बारे बहुत सारे लोगों ने बड़िया गल्लां लिखियां ने, चाहे तुसीं दुना सिंह हडूरीए नूं पढ़ लो, किसी होर नूं पढ़ लो, भी हीरा चट लिया। एक ने लिखा भी माता जी ने टोडरमल जी नूं कहा मैनूं हीरा दे दे, मैं चट के अपने आप नूं समाप्त करना चाहती हूँ। जदों अपने पति नूं भेजा उदों तो हीरा चेते नहीं आया कदे। कि साहिबजादियां पोतियां दी शहादत वेले चेता आया? नहीं। उस माता ने जिवें सिदक नाल अपने पति नूं कुर्बान किया ना, उसे सिदक दे नाल अपने जिगर दे टोटियां नूं बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह नूं कुर्बान किया है। और उन्हां दी बदौलत अज असीं सरदारियां लैके बैठे हैं, शानो शौकत दा जीवन जी रहे हैं, आनंद दा जीवन जी रहे हैं। और सानू सतगुरु पातशाह जी ने जो सिद्धांत बख्शिश किया है वो हर समय आनंद भैया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। इत्थे साडी समाप्ति होती, हुण भी इत्थे समाप्ति होनी है आनंद साहब पढ़न तो बाद। इहदा भाव जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख सनेहार भै नहीं जाके, कंचन माटी माने। ये जीवन जाच होती है ते ये जीवन जाच सानू प्राप्त होनी है जदों मन है हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी। एक पासे असीं हुक्म की पालना करनी है, दूसरे पासे स्वतंत्रता भी प्राप्त करनी, लेकिन स्वतंत्रता हुक्म विच रह के आग्याकारी होके गुरसिख मीर चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। इन्हां समागमां दा मकसद है कि सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी, गाविया सुनिया जिनका हर थाई पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी। मेरिया भुलां मेरिया समझ की खिमा कर देनी। गुरु के बचन जो आप जी ने साझे कीते ने वो गुरु के समझ के हिरदे च बसा लेने। अपने दसवंध नूं ईमानदारी ना कड्डो और ओदी वरतों भी सुचजे ढंग ना करो, क्योंकि सानू सतगुरु दा हुक्म अकली साहिब सेविया अकली पाइया मान। मैं साझे तौर पर बेनती कर दूँ, किसी बैनर की गल नहीं भी दसवंध का दसवंध लिटरेचर वास्ते स्थापित करो, दसवंध का दसवंध धर्म प्रचार वास्ते स्थापित करो। अपने घरों में गोलका रखो, जिथे लोड़वंद है उत्थे जाके भेटा करो। कोई कारज करवाते हो अखंड पाठ साहब करवाओ, सहज पाठ करवाओ, आप करो, निरे रुमाले ना लैके हाजिर हो। जाके पूछो प्रबंधक साहबाना कि किस चीज़ की जरूरत है। जो रुमाला साहब चाहिए रुमाला साहब भेंट करो, जे सुखासन के रुमाले चाहिए वो भेंट करो।
ਜੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦਲਿਦਰੀ ਸਨ ਲੋਕ, ਮੈਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਧਰਮ ਪੰਥ ਕਰ ਗੁਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।